substrate concentration. This factor also affects the rate of the enzymatic reaction. क्योंकि for a given enzymatic concentration, the rate of reaction increases with increase in substrate concentration. If you fix the concentration of the enzyme, if it is constant throughout the reaction, क्योंकि एंजाइम तो यूटिलाइज होता नहीं है, तो रिएक्शन के स्टार्ट में जो आपने दिया एंजाइम का अमाउंट, वही एंजाइम रिएक्शन के एंड में भी सेम अमाउंट बचा रहता है। ये सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट वाली बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है प्रोडक्ट का और सबस्ट्रेट का घट रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन ही उन्हीं का है। लेकिन एंजाइम जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करके रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, तो वो एंजाइम कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। तो इफ यू गिव ए पर्टिकुलर concentration, particular amount of enzyme for a reaction in a reaction mixture to occur, enzyme vertically catalyzed reaction, and at the initial level and final time point, enzyme concentration will be remain same. So no problem to understand it. If you increase the substrate concentration, enzyme concentration is fixed, rate of the reaction will also increase. So the rate of reaction is directly proportional to substrate concentration. Are समझ में students? Yes, sir. For a given enzymic concentration of the enzyme, the rate of reaction increases with increase in substrate concentration until all the available active sites are occupied by substrates. Once all the active sites are used up, क्या हो गया? एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ गया। मेरा पेन चल रहा है क्या? No, sir. मुझे फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। यस, आया। कुछ लिखा रहा है क्या आप लोग पर? लाइन बंद? No, sir. No, sir. नहीं लिख रहा। 1 सेकंड, मीट भी नहीं रहा है। 1 सेकंड, फिर से रिकनेक्ट करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? Yes, sir. ओके, हाँ हो गया। क्या बोल रहे थे? The rate of reaction, the rate of reaction increases with the increase in substrate concentration. Sir नहीं लिखा है। अभी आ रहा है, लेकिन अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, अभी बोल रहा हूँ, तो ठीक है, आप इसको पॉइंट बना लोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने के साथ, और तब तक इंक्रीज करेगा until all the available active sites are occupied by the substrate. Once all the active sites are used up, the rate of reaction remains constant with increase in substrate concentration. If you increase the substrate concentration, then the rate of the reaction will be continuing. Otherwise, the rate of the reaction will decrease because all the substrate has been used up. समझ रहे बात को? Yes, sir. एंजाइम का कंसंट्रेशन फिक्स्ड है,
आपने एक सबस्ट्रेट डाल दिया, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन फिक्स है, आपने जो डाला एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को अंत में 0 कर देगा। क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगी। जब सबस्ट्रेट ही नहीं है तो रिएक्शन कैसा। फिर जब और सबस्ट्रेट डालोगे तब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, नहीं तो रुक जाएगा। ओके, तो क्या इसका बनेगा आपको, देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा। इन दिस केस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन रेट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। As the substrate concentration increases, the reaction rate will also increase. And you will reach at a time point when all the substrates are saturated with the active site of the enzyme. Okay. And at that time point, reaction rate will not increase further. You will get the plateau. And it will be there until all the substrates are utilized. चूंकि ये ग्राफ जो है सबस्ट्रेट का इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में, इसलिए आपको डिक्लाइनिंग नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में, सबस्ट्रेट 0 होगा तब ना ग्राफ डिक्लाइन होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? नेक्स्ट पर चलेंगे आप, तीसरा फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। पता है आपको, टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन। चूंकि रेट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन जो है वो कैटलाइज होता है rate of enzyme catalyzed reaction increases with increase in temperature until a peak velocity is obtained. Because heating increases the molecular motion. Thus, the molecules of the substrate and enzymes move more quickly, and the chances of their interaction into each other gets increased. The collision increases, oscillation increases. Oscillation नहीं, oscillation होगा किसी solid में. Collision, rate of collision also increases. So rate of successful collision also increases. Therefore, you get more enzymatic activity when you increase the temperature. But इसका भी limit है. इतना टेम्परेचर ना बढ़ा दीजिए कि एंजाइम डीनेचर हो जाए। ओके, इसलिए द टेम्परेचर एट व्हिच द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम is known as optimal temperature. This will be the optimal temperature. The peak will be the maximum temperature at which the temperature at which rate of the reaction is maximum, that is optimal temperature. इस optimal temperature से कम भी rate of the reaction कम होगा इस temperature से, तो कम होगा क्योंकि collision जो है वो every collision is not getting not turning up into the successful collision, and the temperature increases the chances of successful collision, और वो हो रहा है. That's why the rate of reaction is increasing. और decrease क्यों हो रहा है कि after this, क्योंकि एंजाइम का प्रोटीन है उसका लिमिट है, इतना टेम्परेचर को बर्दाश्त किया, इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जा रहा है. ओके, नहीं ये ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको
this will be temperature and this is reaction rate. अब ठीक हुआ। तो यह जो है आपका ऑप्टिमल टेम्परेचर हो गया। ये वाला टेम्परेचर। हम लोगों के बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमल टेम्परेचर ज्यादातर एंजाइम का 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। इसलिए हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर इतना रहता है। सारे एंजाइम अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर को प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, एक्सट्रीमोफाइल्स, उनके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनका ऑप्टिमल टेम्परेचर इज हाइयर, क्योंकि वो उसी हैबिटेट में रहते हैं। थर्मोफिलिक इवेंट्स, तो उस वहां पर ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ द एंजाइम इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे भी ज्यादा। यानी बॉइलिंग कंडीशन में भी उनके एंजाइम वर्क कर सकते हैं। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? फोर्थ फैक्टर इज पीएच। pH also affects, because pH is the negative logarithm of hydrogen ions. Low pH means more hydrogen ions, and more hydrogen ion means these ions will attack, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बहुत ही प्यासा है ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कोई इसका छीन लिया है उसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ज्यादा ये होंगे तो इसीलिए जिस सॉल्यूशन में ज्यादा फ्री ये हाइड्रोजन आयंस होते हैं उस सॉल्यूशंस को हम एसिडिक बोलते हैं। इसीलिए एसिड जो है खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, और जहां पर ये डलेगा उस स्ट्रक्चर्स में वो जो मॉलिक्यूल होंगे उस सरफेस पर जिनके साथ ये रिएक्ट करेगा उनको ये उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, या अपना ये प्रोटॉन जो है वहां जाकर के बाइंड कर जाएगा, स्ट्रक्चर विल बी लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड। और ये कई सारे एसिडिक है, और अल्कली में OH आयन का ज्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक, तो ये पीएच भी जो है एंजाइम के फंक्शन को अल्टर कर सकता है। किसी एंजाइम के फंक्शन करने के लिए एक सुटेबल पीएच होना चाहिए, उनका पीएच न्यूट्रल पीएच के करीब होना चाहिए। तो न्यूट्रल पीएच किस पे कहते हैं? तो सेम न्यूट्रल पीएच में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और आपका हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन दोनों बराबर है, तो पीएच 7 हो जाएगा। वाटर का पीएच 7 है, प्योर वाटर का। ठीक, जितने भी H2O मॉलिक्यूल हैं वो इक्वली डिसोसिएट होते रहते हैं और फिर एसोसिएट होते रहते हैं आपके हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन से। डिसोसिएशन एसोसिएशन भी चलते रहता है, इसलिए वाटर में किसी भी टाइम पॉइंट पर उनमें इक्वल कंसंट्रेशन, प्योर वाटर में इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ये आयन और इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ये आयन मिलेगा। दैट्स व्हाई एंड बोथ न्यूट्रलाइज, दैट्स व्हाई द न्यूट्रल पीएच। ओके, तो हमारे एंजाइम का भी पीएच जो है इसके करीब होना चाहिए, ऑप्टिमल पीएच हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच के नजदीक, तो दे विल function optimally, maximally. So under the constant factor, all these temperature, substrate concentration, enzyme concentration, इस सबको constant अगर आप कर दिए तो pH जो है वो that will affect the rate of reaction. pH at which the rate of enzyme control reaction is maximum
is known as optimum pH. तो इसका भी ग्राफ उसी टेम्परेचर के जैसा आता है। Rate of reaction, this is pH. As you increase the pH, and this will be your optimum pH, this point. As you go away from the maximum pH, the rate of the reaction will be less. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. समझ में आ गया आपको? तो एंजाइम काइनेटिक्स इज ओवर। कोई सवाल है आपको? कोई सवाल करना है? No, sir. No, sir.